Good morning, students. So today we'll discuss about the occupational structure or the distribution of workforce by industry. Okay, uh, we have divided the industry or the economy into three sectors. One is primary sector, second one is secondary sector, and the last one is tertiary sector. Okay, we have already discussed about this division or this classification, or we are being discussing uh, this classification since class 10th. Okay, कि हम किन बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन है इकोनॉमी को तीन सेक्टर्स में डिवाइड किया है, ये बेसिस पे हम और बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. लाइक प्राइमरी सेक्टर को नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पे, सेकेंडरी सेक्टर को हमने कैपिटल रिसोर्सेज या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के बेसिस पे, एंड टर्शरी सेक्टर को हमने सर्विसेज के बेसिस पे, लाइक सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर है इसलिए उसको टर्शरी सेक्टर का नाम दिया है. ओके, सो इस तरीके से हम तीन सेक्टर्स में इकोनॉमी को डिवाइड कर लेते हैं. ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर or the distribution of workforce. That means how is the total workforce of India is divided into these three sectors. Okay, so we have already discussed in the last video that the primary sector engages most of the workforce in itself, or most of the workforce in India is engaged in primary sector. Okay, so as the graph shows, near about 46.1%, okay, near about 46.1% of the workforce is engaged in primary sector, 21.8% is engaged in secondary sector, and 32.1% is engaged in tertiary sector. Okay, so the data may vary according on year basis. Okay, so the data which we are discussing is related with the year 2015-16. Okay, so or whatever the data we are taking, okay, that may vary. Okay, but the official data which we study, that depends on the surveys. Okay, economic surveys. Okay, and the last economic survey which we have observed or experienced, that had taken place in 2011-12. Okay, so हम 2011-12 के अकॉर्डिंग ही ऑफिशियल डेटा लेंगे, चाहे 2015-16 का 16 में लेंगे या 2018-19 में लेंगे. ओके, सो सर्वे के अकॉर्डिंग, सर्वे जो 2011-12 में हुआ इकोनॉमिक सर्वे, उसके अकॉर्डिंग ही हम डेटा लेके चलेंगे. ओके, सो दिस डेटा इज of the year 2015-16. Okay, over the years it change हो सकता है. Okay, so if we take 2018-19, so there would be a slight decline in primary sector. Okay, primary sector से resources shift हो गए, tertiary में चले गए होंगे. Okay, so there may be changes. Clear? So doesn't matter कि हम किस ईयर का डेटा ले रहे हैं. हालांकि सर्वे जो लास्ट हुआ था वो 2011-12 में ही हुआ था, उसके बाद कोई सर्वे नहीं, इकोनॉमिक सर्वे इसके रिगार्डिंग नहीं हुआ है, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. ओके, so we have to discuss, or we have to take the point that how much proportion of the workforce is engaged in which sector. Okay, so through conclusion or through analysis, we may find that most of the workforce, or you can say near about half of the workforce, okay, that is 46.1%. Okay, that means it is approximately half. Okay, near about half of the total workforce is engaged in primary sector. Okay, and 32.1%. Okay, the second number is of tertiary sector, and the secondary sector comprises only 21.8% workforce. Okay, so through this data we may find that, or we can find that, so most of the workforce or people are highly engaged in primary sector. Okay, we have we have analyzed, or we have observed these facts. Okay, so the next point is, if we compare the output which we have already discussed. Okay, पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी सेक्टर में वर्कफोर्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आउटपुट का लेवल है या फिर प्रोडक्टिविटी. ओके, सो द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड द वेज रेट, ठीक है, आर सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्राइमरी सेक्टर एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. ओके, वर्कफोर्स जो है सबसे ज़्यादा इंगेज है या सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब की गई है प्राइमरी सेक्टर में. ओके, या प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जो आउटपुट का लेवल है वो सेकेंडरी और टर्शरी के मुकाबले काफ़ी कम है प्राइमरी सेक्टर का. ओके, एज अ रिजल्ट द वेज रेट इज ऑल्सो लो. ओके, ऑब्वियसली आउटपुट कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, तो भाई इनकम भी कम होगी, और अगर इनकम कम होगी तो उनको पे किए जाने वाले जो रेम्यूनरेशन है, ठीक है, कॉम्पनसेशन है, वो भी कम होंगे. ओके, सो वेज रेट कम है. ओके,
Reason being कि जो primary sector है that is backward still. That means in primary sector we are not still using the improved or better technology or the methods of production. Okay, so backwardness is the reason. Okay, primary sector में backwardness है. Clear? Apart from that, if we talk about the most of the workforce is engaged in primary sector and primary sector is backward, that means the people who are engaged in primary sector will also be termed as backward people because they are not using, they are not familiar with the improved or better technology. Okay, they are not using or they are not familiar with the technology. Okay, the improved technology, so they will be considered as backward. Okay, and economically they are also backward because they are getting low wages. So the primary sector is backward, so as the people are backward in the primary sector. Okay, next one is uh, as we know that the primary sector offers the greater employment opportunities. Okay, reason being the other sectors, the other two sectors like secondary sector and tertiary sector are providing or not offering much employment opportunities to these people or the workforce. That's why the people are compelled to work or to engage in primary sector. Okay, एक रीज़न ये भी है कि प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादातर वर्कफोर्स क्यों इंगेज है बिकॉज क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है और यू कैन से द सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शरी सेक्टर are not offering adequate or sufficient employment opportunities. Okay, or these sectors have failed to generate ample job opportunities. Okay, they are not offering sufficient or adequate employment opportunities. That's why most of the workforce is engaged in primary sector. Okay, next one is if we compare all the three sectors, so we got to know that the secondary sector is far behind the tertiary sector still. Okay, काफ़ी ज़्यादा पीछे है tertiary से भी. ठीक है, so that means जो industrialization है, industrial sector है, ठीक है, वो उतनी ज़्यादा employment opportunities create नहीं कर पा रहा है. उसके पीछे reason भी है कि in industries we are using more and more machines or capital intensive technique. That's why less and less labor units are or laborers are being required or used. Okay, क्लियर. ये जो टेक्निक्स है प्रोडक्शन की ये भी एक रीज़न हो सकती है. ठीक है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का. ओके, देयर आर टू टेक्निक्स लाइक वन इज capital intensive technique of production and the other one is labor intensive technique of production. Okay, these may also create a problem for the employees or the potential employees or the prospective employees. Okay, or the workers or for the workforce. Okay, so those who are the prospective workers. Okay, that means those who are aspiring for a job. ठीक है, प्रोस्पेक्टिव वर्कर्स होते हैं जो फ्यूचर में जॉब करेंगे या दोज हु आर सर्चिंग फॉर द जॉब. ओके, दीज आर प्रोस्पेक्टिव वर्कर्स. ओके, और एम्प्लॉइज. क्लियर. सो इफ वी आर यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इन इंडस्ट्रीज, ओके, so those who are searching for job will not get or will not be able to find any job because their place has been taken by the machines. Okay, उनकी जगह पे machines काम कर रही हैं. Okay, so the technique of production can also be a reason behind the lack of employment opportunity. शॉर्ट रन में अगर बात की जाए तो ये भी एक रीज़न हो सकता है. लॉन्ग रन में तो हालांकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी अगर मशीन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने पे लेबर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी. ठीक है, क्लियर. तो शॉर्ट रन में ये भी एक रीज़न हो सकता है. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल अर्बन वर्कफोर्स इन डिफरेंट sectors. Okay, so it is very clear that most of the workers or most of the people are engaged in primary sector in rural areas. So most of the workforce is engaged in primary sector in rural, whereas in urban areas the share of primary sector in employment will be very low, very low. Okay, क्लियर. तो कंपैरिजन से हमें क्या पता चला, प्राइमरी सेक्टर में रूरल एरिया के लोग हैं, रूरल वर्कफोर्स ज़्यादा एंगेज है. ओके, एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी एंड टर्शरी. ऑन द अदर हैंड, in urban areas the share or the contribution of primary sector to employment is very low as compared to the secondary and tertiary sector. Okay, so in urban areas most of the people are engaged in tertiary sector and in rural areas they are engaged in primary sector. Okay, so that is the comparison we have seen. Now through observation or analysis we will find out some points. Okay, so like in tertiary sector we know that
Tertiary sector provides the services or offers the services to the general people. Okay, various kinds of services are included in tertiary sector, like banking, insurance, health, education, tourism, okay, trade and commerce. These are the services, and over the years, these services have tremendously risen, okay, or emerging up. That's why their employment opportunities or the opportunities in employment or for opportunities for employment in tertiary sector is tremendously rising in tertiary sector, okay, in for urban areas, because we have already discussed in our earlier chapter that industrial units are being set up, okay, near the market areas, okay. So the markets are in urban areas mainly, so industries are being, these industries, the service industries are being established near the market areas, where these are in urban areas. So urban people are easily or can easily find or conveniently find the job opportunities, whereas in rural areas the mobility, the factor mobility is very low. That means not all the people are able to migrate to the urban areas, okay, or they are not like willing to migrate, okay. Some of them are not willing to migrate, okay. So due to low mobility and accessibility, okay, the rural people are not able to find employment opportunities in tertiary, okay. Clear? Means as a matter of fact that the tertiary sector is offering employment opportunities in urban areas, okay, but the people of rural areas are engaged in primary sector, okay, because they are not able to migrate to the urban areas either, or they are not willing to migrate, okay. रीज़न हो सकता है कि वो प्राइमरी में इंगेज हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वेजेस भी कम है, फिर भी इंगेज हैं, ठीक है, वो अर्बन में नहीं जा रहे हैं। इवन अर्बन एरियाज में टर्शरी सेक्टर ज़्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, फिर भी वो नहीं जा रहे हैं। रीज़न हो सकता है आइदर दे कैन नॉट माइग्रेट, ओके, और दे आर नॉट विलिंग टू माइग्रेट, ओके। हर कोई माइग्रेट नहीं कर सकता, हर कोई मोबाइल नहीं है, या फैक्टर्स की मोबिलिटी परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट मोबिलिटी है। दैट मीन्स हर कोई नहीं जा सकता है, शहरों में शिफ्ट नहीं हो सकता है ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, ओके, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा होती है, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। सो एवरी पर्सन फ्रॉम रूरल कैन नॉट migrate to the urban people, and some are there who do not want to migrate or who are not willing to migrate, वो जाना ही नहीं चाहते हैं, okay. So these are the reason, clear? That's why urban areas में जो है employment opportunity tertiary sector में ज़्यादा है, और primary sector में rural area के लोग ज़्यादा engaged हैं, ठीक है। हालांकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स कहाँ से अराइज हुई? वेज रेट की वजह से, कि वेजेस और प्रोडक्टिविटी कम है, फिर भी वो लोग माइग्रेट नहीं होते हैं। रीज़न कोई कुछ होना नहीं चाहते हैं और कुछ हो नहीं सकते हैं, ठीक है, इस वजह से वो अर्बन एरिया में माइग्रेट नहीं करते हैं। सो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के थ्रू हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जिनसे कुछ क्वेश्चंस अराइज होंगे, उनके ऊपर हमने ध्यान देना है। ये जो डेटा है इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा लाइक क्वेश्चन मतलब पूछे नहीं जाते हैं कि लाइक 2015 में वर्कफोर्स कहाँ कहाँ पे डिवाइडेड थी, 2018-19 में कहाँ थी, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ओके। क्वेश्चन एनालिसिस बेस्ड होते हैं कि तुम लाइक यू आर आस्क्ड why the people or rural people are engaged in primary sector, or most of the workforce is engaged in primary sector in rural areas. Even there is wage rate, or their wage rate is very low, okay, and you can also say why the people or most of the workforce is engaged in primary sector. Even the tertiary sector in urban areas is offering more and more employment opportunities. The reason being lack of migration or lack of accessibility to the opportunities, okay। दो points हम वहाँ पे discuss करेंगे। Not every person or not every person cannot migrate to the urban areas, and some are there who are not able to, sorry, not willing to migrate, okay। So two points are there which may define that most of the workforce are engaged in primary sector in rural areas, okay। कोई जाना नहीं चाहता और कोई जा नहीं सकते हैं, okay। नेक्स्ट जो फीमेल वर्कफोर्स है उनके बारे में हम पढ़े थे कि फीमेल वर्कफोर्स जो है रूरल एरियाज में ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है, ठीक है, एंड अर्बन एरियाज में जो है वो टर्शरी में इंगेज होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट मोस्ट ऑफ द फीमेल वर्कर्स आर वर्किंग इन अर्बन रूरल एरियाज। अर्बन जो प्रोपोर्शन है फीमेल वर्कर्स का वो काफ़ी कम है। रीज़न बीइंग जो रूरल एरियाज है वहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है, ठीक है, दैट्स वाई द फीमेल आर कंपेल्ड टू डू jobs in rural areas as compared to the urban areas, okay।
Now the point is, why the female workers are engaged in primary sector? Okay, most of the females are engaged in primary sector because they are not allowed either, or not willing to go outside their domestic chores, okay, और domestic boundaries, okay, इसलिए वो प्राइमरी सेक्टर अपनी एग्रीकल्चर या फार्मिंग एक्टिविटीज में ही इंगेज होती हैं, ओके, दैट्स वाई वो प्राइमरी सेक्टर में ही इंगेज है. नेक्स्ट, here is a point, like we have analyzed or observed all the three sectors, okay, and through this observation or analysis we have found out that most of the India's workforce is engaged in primary sector, okay. So this can be a characteristic of the economy which highlights its backwardness, okay, means most of the backward economies are characterized by more employment opportunities in primary sector and less employment opportunities in secondary and tertiary sector. Why so? Because if less and less employment opportunities are available in secondary and tertiary sector, that means secondary and tertiary sector are not growing, they are not expanded, they are not offering opportunities, okay, to the general people. Clear? Okay, that means this feature is indicating the backwardness of the economy, okay. So तो जो इकोनॉमीज या जिन इकोनॉमीज में ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में इंगेज्ड हैं, ओके, सो उनको ये माना जाता है कि वो बैकवर्ड है. क्लियर? बिकॉज जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं या डेवलप्ड नेशंस हैं, वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उनकी वजह से जो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, वहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. क्लियर? एंड अगर किसी इकोनॉमी में सेकेंडरी और टर्शरी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स दे आर नॉट कैपेबल, वो जो इंडस्ट्रीज हैं या वो कंट्री या इकोनॉमी है, ठीक है, इट इज़ नॉट कैपेबल टू ऑफर और टू एक्सपैंड more employment opportunities in secondary and tertiary sector. Clear? So that's why they are backward economies which are having more employment opportunities, or most of the workforce is engaged in primary sector. These economies are considered as backward, okay, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, दैट मीन्स कैपिटल रिसोर्सेज डेवलप नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज ही मशीनें बनाती हैं. एंड अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है या इंडस्ट्रियल का स्लो ग्रोथ है, दैट मीन्स वेराइटी ऑफ गुड्स आर नॉट available in the market. If variety and quality of goods are not available, that means the standard of living of the people or quality of life of people is very poor. Okay, उनका standard of living जो है या quality of life है वो काफी कम है. Okay, and all these points are indicating towards the backward status of the economy. Clear? It is very clear. Clear? Backward status हम कहाँ से measure करते हैं? या तो economic point of view से. Clear? Economic point of view से हम income पे चले जाते हैं. Income low है तो quality of life जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो लो होगा. क्लियर? इनकम कम है बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स इज एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, एंड इट इज एविडेंट दैट the wage rate in primary sector is very low. Obviously the income of most of the workforce, clear, income of most of the workforce, because most of the workforce is engaged in primary sector, so income of most of the workforce will be low in the economy. So economy would be characterized as backward economy. Clear? सो इंडियन इकोनॉमी जो है बैकवर्ड इकोनॉमी मानी गई है, बिकॉज वहाँ पे जो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अभी भी एक चैलेंज के रूप में, एक प्रॉब्लम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट अभी नहीं कर पा रहे हैं. ठीक, उसके कुछ रीज़न ये भी हो सकते हैं जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे. रीज़न बीइंग कि लाइक इट मे बी पॉसिबल दैट द जीडीपी ऑफ द कंट्री और इकोनॉमी इज हाई. Okay, the GDP or the production in the country is increasing, but employment opportunities are not growing in proportion, okay, or proportionately. Why so? It is just because the country or the economy is using capital intensive technique. Okay, if we compare the growth rate or the like development of the economy on the basis of GDP, if we compare the growth rate on the basis of GDP, clear? So we may find that the GDP of India is increasing or rising, but on the other hand the employment opportunities are not increasing proportionately. Okay,
एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बढ़ रही हैं, इस वजह से भी हम इसको बैकवर्ड मान के चलते हैं, क्योंकि अगर हम जीडीपी के बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो हम बैकवर्ड नहीं हैं, क्योंकि हम डेवलपिंग नेशन हैं, क्लियर। लेकिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बेस पे देखें या अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में देखें, ठीक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिस वजह से अगर इस बेस पे कंपेयर किया जाए या ऑब्जर्व किया जाए तो इंडिया एक लाइक बैकवर्ड इकोनॉमी की तरह रिजेंबल करती है, ओके, मीन्स लाइक मोस्ट ऑफ द अदर बैकवर्ड इकोनॉमीज the problem of unemployment is still a challenge for India. Okay, so we may say on basis of unemployment problem, we may say that India is still a backward economy. But on the basis of growth rate, it is not a backward economy, it is a developing economy. Growth rate हम GDP से measure करते हैं. Okay, so हम कह रहे हैं कि GDP के basis पे तो developing है, लेकिन unemployment इतनी ज़्यादा है कि वो एक backward economy की तरह दिखती है. तो ऐसा कैसे हो सकता है? Okay, so the point is the cause behind is using more and more capital intensive technique. हम ज़्यादा से ज़्यादा capital intensive technique यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मशीनें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं instead of using labor power. Okay, as a result production is increasing. Okay, production is increasing, but on the other hand employment opportunities are not increasing because the machines are replacing the human beings. Okay, human beings को जो है या laborers को या workers को जो है मशीन्स रिप्लेस कर रही हैं, तो प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है साथ साथ, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बढ़ रही हैं. ओके, सो अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मे बी ऑब्जर्व्ड आइदर बाय इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सो दैट प्रोडक्शन इंक्रीज. अल्टीमेटली जो ग्रोथ है वो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, जीडीपी के ऊपर डिपेंड करती है. ओके, तो हम प्रोडक्शन बढ़ा दें या तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा के, क्योंकि हमने पढ़ा कि दो टेक्निक हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन की, एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा लेबर इंटेंसिव टेक्निक. तो अल्टीमेटली हमें ग्रोथ के लिए क्या करना है? प्रोडक्शन इंक्रीज करना है. ओके, सो इफ वी डू वांट टू ऑब्जर्व द ग्रोथ इन द इकोनॉमी वी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन और द जीडीपी. ओके, सो दिस कैन बी achieved either by increasing the employment opportunities so that more and more labor force will work and production will increase, और by increasing or using better और improved technology. ठीक है, या तो टेक्नोलॉजी improve कर दो, ठीक है, उससे भी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी इंक्रीज होगी तो डेवलपमेंट होगी या ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी, या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज कर दो सो दैट मोर लेबर फोर्स और वर्कर्स विल वर्क. एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज और जीडीपी इंक्रीज होगी. क्योंकि दो रीजंस हैं, दो पॉइंट्स हैं, दो कॉजेज हैं जिनसे हम ग्रोथ रेट या डेवलपमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं. बट इंडिया में हम सेकंड के ऊपर फोकस्ड है. ओके, वी आर यूजिंग इम्प्रूव्ड और बेटर टेक्नोलॉजी, वी आर यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. एज अ रिजल्ट आर जीडीपी on one hand is increasing or rising continuously or consistently, but on the other hand the employment opportunities are getting reduced because the machines are replacing the human beings. Okay, so GDP wise हमारी growth rate तो increase हो रही है but employment opportunities नहीं increase हो रही है proportionately. Clear? So इस situation को हम कहेंगे jobless growth because we are observing growth और डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी. ओके, ग्रोथ तो हो रही है क्योंकि जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन ये ग्रोथ जॉबलेस ग्रोथ है क्योंकि जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर पा रही है. ओके, सो इट इज नोन एज और दिस सिचुएशन विल बी कॉल्ड एज जॉबलेस ग्रोथ. ओके, सो व्हाट इज जॉब, अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज या व्हाट डू यू मीन बाय जॉबलेस ग्रोथ? ओके, सो जॉबलेस ग्रोथ इज अ सिचुएशन और अ कंडीशन व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट और द ग्रोथ इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, द लेवल ऑफ आउटपुट इज इंक्रीजिंग और द ग्रोथ इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन द इकोनॉमी. ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर नॉट इंक्रीजिंग. ओके, प्रोपोर्शनेटली, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं हो रही. सो इट इज अ कंडीशन और सिचुएशन वेयर ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड और वेयर प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर नॉट इंक्रीज्ड. ओके, दैट इज नोन एज जॉबलेस ग्रोथ. ओके, अब why we are using, the point is why we are using or relying more on technology and less on employment. ऐसा क्यों है कि हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है? ओके, ऐसा लाइक मीन्स जानबूझ के नहीं किया जा रहा. रीज़न है कि यार इकोनॉमी इज हाईजेक्ड बाय एमएनसीज. ओके, हमारी जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो मीन्स उनके ऊपर जो डोमिनेंस है वो एमएनसीज का, मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेशन हैं, ठीक है, उनका डोमिनेंस है, उनका प्रभाव है. एंड दीज एमएनसीज आर वर्किंग फॉर देयर प्रॉफिट, दे आर जस्ट वांट टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट or their profit margin. Okay, and that is they are doing by reducing the cost of production
क्लियर, वो ऐसा कर रही हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कट डाउन करके। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कट डाउन कब होगा, जब लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होगा, और लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए या जल्दी से प्रोड्यूस करने के लिए, तेजी से या लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मशीन यूज़ करनी पड़ रही है। ओके, सो एज अ रिजल्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गेट डिक्लाइन और रिड्यूस्ड। क्लियर, को पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है जब लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए वो मशीनें ज़्यादा यूज़ कर रही हैं और लेबर पावर का यूज़ कम हो रहा है। क्लियर, एज अ रिजल्ट उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन इसका अल्टीमेट जो नुकसान है या नेगेटिव इम्पैक्ट है वो इकोनॉमी के ऊपर है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज होती जा रही है। ओके, the next one is casualization and informalization of workforce. Okay, there are two conditions or those 2 points are there. One is casualization of workforce and another one is informalization of workforce. Okay, as the name suggests, casualization, it is related to the casual workforce and the casual workers. Okay, so casual workforce are the workforce or the workers who are not given the benefits अदर देन देयर पेमेंट्स। ओके, वो उनको वो बेनिफिट्स नहीं दिए जाते जो उनकी पेमेंट्स के अलावा बाकी वर्कर्स को, परमानेंट वर्कर्स को मिलते हैं। ओके, दीज आर द कैजुअल वर्कर्स, दैट मीन्स दे आर नॉट परमानेंट, दे आर नॉट हायर्ड फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। ओके, on the other hand they are hired for a short duration. Okay, and mainly these are unskilled or semi skilled workers. Clear, so casual workers are the workers those who are hired for a very short time period and are not given the benefits other than payments. Okay, उनकी payments के अलावा उनको और कोई benefit नहीं मिलते हैं। Okay, these are the casual workforce. Clear, so they can be removed, they can be fired out anytime. Okay, उनको कभी भी निकाला जा सकता है, वो casual workers है। Clear, so casualization is a process. So what type of process is this? This is the process of increasing the number of casual workers in the total workforce of the industry. इंडस्ट्री की टोटल वर्कफोर्स में कैजुअल वर्कर्स का नंबर इंक्रीज करना, दैट मीन्स द इंडस्ट्री और द कंपनी डू वांट्स टू हायर मोर एंड मोर वर्कर्स ऑन कैजुअल बेसिस. Okay, the company wants to hire the workers casually. Okay, so that they can, whenever the company or the industry wants, it can cut down its cost by removing or firing out the casual workers. Clear, because the permanent workers, to remove or to fire out the permanent workers, the industry or the company have to follow some rules and regulation or a certain procedure. Okay, the company is binded by the rules. Okay, while firing out the or retrenching the permanent workers. Clear, in some cases it may be possible that the company has to pay some advance payments to the workers which are on permanent, who are on permanent basis, and the company is going to fire them out. Okay, or retrenching. क्लियर, मतलब परमानेंट वर्कर्स को अगर कंपनी निकालना चाहती है तो उसके लिए उसको कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, वो कुछ रूल्स से बाउंडेड है, बंधी हुई है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि परमानेंट वर्कर्स को अगर रिट्रेंच कर रही है, निकाल रही है, ठीक है, तो उनको एडवांस पेमेंट भी करनी पड़ जाए, लेकिन कैजुअल वर्कर्स के केस में ऐसा नहीं है। ओके, सो कंपनी चाहती है कि वो कैजुअली ज़्यादा हायर करने, अपनी वर्कफोर्स को कैजुअली हायर करे, सो दैट जब कंपनी चाहे नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज कर सकती है और जब कंपनी चाहे नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज कर सकती है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, मतलब सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, ना ही कोई एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, एडवांस पेमेंट मीन्स जब कंपनी लाइक या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने परमानेंट वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को रिट्रेंच करती है, ठीक है, तो एक प्रोविज़न है, एंड दैट प्रोविजन सेज दैट अगर आप उनको इंस्टेंटली निकाल रहे हैं विदाउट अ प्रायर नोटिस, ठीक है, उनको प्रायर नोटिस के बिना ही निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको कुछ मंथ्स की सैलरी कॉम्पनसेशन के रूप में एम्प्लॉयज़ को देनी पड़ेगी। ओके, एम्प्लॉयज़ हैव टू बी कॉम्पनसेटेड इन टर्म्स ऑफ एडवांस पेमेंट और एडवांस सैलरी। ओके, सो ये एक नुकसान या कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है कंपनीज की। क्लियर, लेकिन कैजुअल वर्कर्स के केस में उनको बिना नोटिस के विदाउट कॉम्पनसेशन निकाला जा सकता है, सो कंपनीज को कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ेगी इफ द कंपनीज डू वांट टू रिड्यूस देयर नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके, सो इस वजह से नंबर ऑफ कैजुअल वर्कर्स जो है कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज करना चाहती हैं, सो दैट whenever they do want can reduce their cost of production. Clear, by retrenching the extra or surplus workforce. Clear,
सो ओवर द ईयर्स जो है नंबर ऑफ कैजुअल वर्कफोर्स या कैजुअल वर्कर्स जो है वो इंक्रीज हुए। ओके, ये कुछ डेटा है, ठीक है। ओवर द ईयर्स हमें पता चला कि जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो या कॉन्ट्रैक्ट पे जो है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं वो इंक्रीज हुए, ठीक है। रीज़न वही है कि कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करना चाहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो परमानेंट वर्कर्स हैं, ठीक है, समटाइम्स दे में डोमिनेट, ठीक है, ये कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को डोमिनेट कर सकते हैं, उनको प्रेशराइज या फोर्स कर सकते हैं कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए, लेकिन कैजुअल वर्कर्स के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती। ओके, दैट्स वाई कंपनी सब रूल्स एंड रेगुलेशन से बचने के लिए भी अपनी वर्कफोर्स को कैजुअली हायर करती है, कैजुअली हायर करना चाहती है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज इनफॉर्मलाइजेशन। क्लियर, मैं आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट मेनली जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं वो कैजुअली हायर किए जाते हैं, जो स्किल्ड हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं दे आर हायर्ड ऑन परमानेंट बेसिस मेनली। ओके, सो जो कैजुअल वर्कर्स का नंबर है वो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स में ज़्यादा होगा। नेक्स्ट वन इज इनफॉर्मलाइजेशन। ओके, इनफॉर्मलाइजेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस। ओके, बिफोर मूविंग टू इनफॉर्मलाइजेशन we will have to discuss about the two sectors, one is formal sector and other one is informal sector. Okay, this is the classification of the economy on the basis of work conditions. अब हमने यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में इकोनॉमी को वर्क कंडीशंस या लाइक एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के बेसिस पे डिवाइड किया है। ओके, तो डिवीजन और क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क और एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मल सेक्टर एज वेल एज इनफॉर्मल सेक्टर। इनको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहा जा सकता है। ओके, फॉर्मल सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहा जा सकता है। ओके, एंड दीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। ओके, क्लियर, फॉर्मल सेक्टर में अलग एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस या वर्क कंडीशंस होंगी एंड इनफॉर्मल सेक्टर की कंडीशंस अलग होंगी। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कोई भी एंटरप्राइज या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ओके, विच इज रनिंग विद 10 और मोर वर्कर्स, ओके, जो 10 या 10 से ज़्यादा लोगों के साथ काम कर रही है, ओके, वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कही जाएगी, फॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है, या फिर द ऑर्गेनाइजेशन विल बी कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज्ड। ओके, और फॉर्मल सेक्टर, क्लियर, वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, या ऑर्गेनाइज सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री या कंपनी कही जाएगी जो 10 या 10 से ज़्यादा लोगों के साथ काम कर रही है। क्लियर, एंड इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स जो एंटरप्राइजेस 10 से कम लोगों के साथ या वर्कर्स के साथ काम कर रही है वो हमारी इनफॉर्मल सेक्टर या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर की इंडस्ट्री या कंपनी हो सकती है। क्लियर, so the workers who are working in formal sector are called formal workers. The workers who are working in informal sector are known as informal workers. Okay, difference क्या होता है इनके बीच में कि जो formal workers हैं और जो workers who are engaged in or who are working in organized sector, they enjoy freedom, economic freedom, you can say more economic freedom than the informal workers. Why? Because the formal workers are given benefits अदर देन देयर पेमेंट्स। ओके, उनको उनके काम के बदले जो पेमेंट या सैलरीज मिल रही है उनके अलावा भी बेनिफिट्स मिलते हैं। वो बेनिफिट्स क्या होते हैं, उनको हम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स कहते हैं। ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस अर्लियर लेक्चर द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। दीज आर लाइक प्रोविडेंट फंड, पीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन, ओके, मेडिकल बेनिफिट्स, क्लियर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर ऑल्सो अलाउड पेड हॉलीडेज। पेड हॉलीडेज दैट मीन्स जिन हॉलीडेज के बदले उनको पे किया जा रहा है, मतलब छुट्टी भी मिलती है पेमेंट भी मिल रही है, ठीक है, दीज आर कॉल्ड पेड हॉलीडेज। ओके, कॉम्पनसेटरी लीव्स उनको मिलती है। ओके, so these are the benefits which are being offered or given to the फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। ओके, इनफॉर्मल सेक्टर में ना तो उनको पेंशन मिलती है उनके काम के बदले, हालांकि अब जो है अगर हम आज के फिनोमेना की बात करें तो आज जो है हर सेक्टर में जो है पेंशन खत्म कर दी गई है, गवर्नमेंट भी नहीं देती है एक्सेप्ट डिफेंस, डिफेंस को छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो आज के टाइम में गवर्नमेंट ने भी पेंशन स्कीम खत्म कर दी है, ठीक है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को पेंशन नहीं देती है। क्लियर, सो ग्रेचुटी इज द अमाउंट ऑफ मनी, यू कैन से ग्रेचुटी इज अ टिप। ग्रेचुटी एक टिप की तरह है जो होटल में वेटर को टिप देते हैं उनकी सर्विसेज के बदले। सो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एट द एंड ऑफ द सर्विस जब वो रिटायर होता है तो अपने एम्प्लॉय को वो टिप की तरह दे रहा है, मतलब टिप दे रहा है, ठीक है, उनकी सर्विसेज के लिए जो 10 साल 20 साल उन्होंने सर्व किया तो एम्प्लॉयर उनको टिप देता है। ओके, एंड दैट टिप इज नोन एज, यहाँ पे उसको हम ग्रेचुटी बोलते हैं क्योंकि वो लमसम अमाउंट होती है, काफ़ी सालों की सर्विसेज के बदले दी जाती है। ओके, सो ग्रेचुटी इज अ काइंड ऑफ टिप जो उनकी सर्विसेज के बदले एम्प्लॉयर उनको प्रोवाइड करता है। इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा नहीं होता, फॉर्मल सेक्टर में ही उनको मिलता है। एंड प्रोविडेंट फंड जो फ्यूचर के लिए एक फंड
फंड बनाया गया था जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, वो उनको रिटायरमेंट के टाइम पे या फिर कुछ टाइम की सर्विसेज के बाद मिल जाता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर्मल सेक्टर में लेबर लॉज अप्लाई होते हैं या एम्प्लॉयर्स को या कंपनीज को लेबर लॉज लाइक मिनिमम वेजेस एक्ट है, ठीक है, फैक्ट्री एक्ट है, ये सारे फॉलो करने होते हैं। फॉर्मल सेक्टर में ट्रेड यूनियंस होती हैं जो उनके राइट्स के प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, ट्रेड यूनियंस हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस, ठीक है, कोई लॉ फॉलो नहीं होता है इनफॉर्मल सेक्टर में, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं, कोई ट्रेड यूनियन नहीं होती है इनफॉर्मल सेक्टर में। ओके, सो that was the informal sector. Now what is informalization? Okay, informalization means increasing the workers, number of workers in informal sector. अब informal sectors में अगर number of workers increase होते हैं या फिर you can say if informal sector expands, okay, that is known as इन्फॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मल सेक्टर जब एक्सपैंड करता है या सरपास करता है फॉर्मल सेक्टर को, दैट इज इन्फॉर्मलाइजेशन। दैट मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स आर इंक्रीजिंग इन इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कंपनीज फॉर्मली हायर ही नहीं करना चाहती हैं, ठीक है, परमानेंट बेसिस पे हायर ही नहीं करना चाहती हैं। ओके, मतलब कंपनीज उनको बेनिफिट्स देना ही नहीं चाहती हैं क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में ये सारे बेनिफिट्स उनको दिए जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम देयर वेजेस। ओके, क्लियर, तो कंपनीज उनको ये वेजेस ये बेनिफिट्स ऑफर नहीं करती हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करती हैं उनको हायर करते वक्त। सो दैट मीन्स द वर्कर्स आर इंक्रीजिंग इन इनफॉर्मल, दे आर इनफॉर्मली हायर्ड, वो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हो गए। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ increasing the number of workers in informal sector is known as informalization of workforce. Clear? So over the years informalization भी increase हुआ है just because of privatization। जब से privatization हमने एलपीजी पॉलिसीज पढ़ी हैं, तो privatization जब से हुआ तब से informalization भी increase हुआ because प्राइवेट जो एंटरप्राइजेज हैं या इंडस्ट्रीज या कंपनीज हैं, ठीक है, फॉर देयर ऑन सेक और बेनिफिट दे आर हायरिंग द वर्कर्स ऑन इनफॉर्मल बेसिस, क्योंकि अगेन उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर ना करनी पड़े उन बेनिफिट्स की जो फॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स को देने पड़ेंगे, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम देयर सैलरीज और वेजेस ये बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं, ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पे वेजेस और सैलरीज मिलती हैं उनके अगेन अपार्ट फ्रॉम ये बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। तो कंपनीज ये बेनिफिट्स नहीं देना चाहती हैं सो दैट उनकी कॉस्ट कम से कम हो। क्लियर? सो वो इनफॉर्मल बेसिस पे हायर करती है। सो ओवर द ईयर प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो है इनफॉर्मल जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है, इनफॉर्मल वर्कर्स का नंबर इंक्रीज हुआ है। क्लियर? Presently, formal sector employment comes to nearly 10% and 90% of the workforce is in informal sector. Okay, so informal sector में हमें पता है एक्सप्लॉयटेशन भी है क्योंकि लाइक इनफॉर्मल सेक्टर में उनको ओवर टाइम के लिए पेमेंट भी नहीं किया जाता है। फॉर्मल सेक्टर में प्रोविजंस है, ठीक है, कि अगर आपको ओवर टाइम कराते हैं वर्कर्स से तो आपको पर आवर डबल पे करना पड़ेगा। जितना 8 आवर्स अ डे वो वर्क करता है तो पर आवर अगर उसको 100 रुपीज़ मिलते हैं, तो अगर 8 आवर्स के अपार्ट फ्रॉम 8 आवर्स वो 9th आवर जब वर्क करता है तो उस 9th आवर के लिए उसको 100 के बजाय 200 रुपीज़ मिलेंगे। ओके, सच प्रोविजंस आर देयर इन फॉर्मल सेक्टर कि ओवर टाइम के लिए उनको डबल पेमेंट किया जाएगा पर आवर। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको एक्स्ट्रा नहीं पे किया जाता है ओवर टाइम के लिए, ना ही उनको पेड लीव मिलती हैं। जब वो काम पे आएंगे तब वेजेस मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। एंड अदर बेनिफिट्स भी उनको नहीं दिए जा रहे हैं। सो वर्कर्स आर एक्सप्लॉयटेड, हाईली एक्सप्लॉयटेड इन इनफॉर्मल सेक्टर, और ये सारा प्राइवेटाइजेशन की वजह से हुआ। ओके, सो दीज वर द पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड इन डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। ओके, जो हमने क्लासिफिकेशन किया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ वर्कफोर्स का। ओके, एंड फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में कैसे हुआ है वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके।